Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. So my dear students, our Earth is a fascinating place. You all know that planet Earth is a beautiful planet with lots of life. और ये जो planet Earth है जिसके आप internal structures के बारे में भी पढ़ चुके हैं, इस पे different land forms हैं. So talking about the land forms, we know about the mountains. आपने mountains के बारे में previous lecture में पढ़ा हुआ है, previous grades में भी पढ़ा हुआ है कि mountains जो हैं ये एक बहुत ही wonderful किस्म का जो है land form है. And then we have also discussed in the previous grades about the plateaus. जानते हैं आप इनको? Plateaus देखे हुए हैं आपने? You can easily identify them. And we have also studied about the valleys. These are present on our earth और ये पहाड़ों के दरमियान मौजूद होती हैं. And we have also discussed and know about the deserts. Previous grades में आप इनके बारे में भी पढ़ चुके हैं. ये dry होते हैं, रेतला इलाका होता है. And in the previous lecture and this unit is all about the plains. So my dear students, plains के बारे में हमने क्या पढ़ा था? हमने previous lecture में physical features पढ़े थे. Can you name a few physical features of plains for me? Very good. Yes, the physical features of plains are flat terrain, low elevation, fertile soil, and they also have river systems in them, and the climate. Climate जो है within a typical or a specific plane, it is same. ज़्यादा variation आपको इसमें नज़र नहीं आती. So these were some of the physical features of plains that we have discussed in the previous lecture. So my dear students, now we will start our today's lecture. For that you will open your Geography 7 books, unit number 1, Plains and Rivers, and you will open page for knowledge 1.2, that is page number 5. So quickly open your books. I hope everybody has opened the books. Now let's quickly move forward. So my dear students, today's knowledge is knowledge 1.2, in which you will differentiate plains from other landforms. So आज हम क्या करेंगे? आज हम plains को दूसरे landform से differentiate कर सकेंगे. So my dear students, इसको हम एक एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं. एक बहुत ही इंटरैक्टिव मैप है जिसमें हम तमाम लैंडफॉर्म्स को वर्ल्ड मैप पे इकट्ठा देख सकेंगे. So let's quickly move forward towards this activity. So my dear students, ये इंटरैक्टिव मैप जो है ये डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में है जिसमें आपको डिफरेंट कलर्स के साथ जो है वो लैंडफॉर्म्स नजर आएंगे. मैं आपको इसका लेजेंड भी शो करूंगी. So you can zoom in to different landforms. अब ये जो different colors आपको green, pink, brown नजर आ रहे हैं, they are showing different landforms. So हम इसका legend open करेंगे यहाँ से. तो जो आपको pink color में नजर आ रही हैं, these are the mountains. So all these pink colors are the mountains. आप किसी भी एक को अगर click करेंगे, let's suppose मैं यहाँ click करती हूँ, तो देखते हैं ये कौन सी mountain. This is mountain और ये हिंदू कश है. So मैंने पाकिस्तान के एक इलाके को क्लिक किया which was pink in color and that is Hindu Kush Mountains. Similarly, you can click the orange and you can see that that is a plateau. So ये एक western plateau है in Australia. And moving forward, plains जो हैं जितने भी ये आपको green color से नजर आ रहे हैं, आप किसी भी एक green color को क्लिक करेंगे तो it will show that it is a plain. Northern European plains पे हमने अभी क्लिक किया. And similarly, if you will click here, so this is a mountain. No, I will click this green color. Yes. So these are Ganges plain और Indo-Gigantic plains भी हम कह सकते हैं. The brown color shows the desert. आप किसी भी एक brown color को click करेंगे तो that will show this is Sahara Desert in Africa. So this is an interactive map in which you can zoom in and you can see where the different landforms are present. Okay. So my dear students, moving forward towards our presentation, now we will see that how these landforms are different from each other. So quickly we will look at the elevation. कि elevation की basis पे landforms कैसे एक दूसरे से different है. So here in this picture, आप पहले भी ये picture देख चुके हैं, plateaus, plains and mountains. ये elevation की basis पे एक दूसरे से different है. Plains के बारे में हम already previous lecture में पढ़ चुके हैं और ये इसकी एक physical feature भी था जिसमें हमें पता है कि it is mainly flat
और बहुत ही मिनिमल चेंज होता है इसकी एलिवेशन में। और इसी तरीके से अगर आप इसको कंपेयर करें प्लेटोज से, तो दे आर एलिवेटेड, इनके अंदर ऊंचाई होती है, और माउंटेन्स जो हैं दे आर वेरी एलिवेटेड, और बहुत ज्यादा जो है इसके अंदर रिलीफ और एलिवेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। सो मूविंग फॉरवर्ड, डिफरेंट पिक्चर्स आपको यहां नजर आ रही हैं, और प्लेन्स जो हैं ये रिलेटिवली मिनिमल वेरिएशन की एलिवेशन और जेंटल स्लोप्स के साथ मौजूद होते हैं। डेजर्ट्स जो हैं ये किसी भी दुनिया की लैंड फॉर्म में मौजूद हो सकते हैं, प्लेन्स में, माउंटेन्स में, ये बेसिकली क्लाइमेटिक चेंज की वजह से डेजर्ट्स फॉर्म होते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द माउंटेन्स, माउंटेन्स जो हैं ये हाई एलिवेशन होती है, और इनके अंदर जो है स्लोप्स बहुत स्टीप होती हैं, और आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एलिवेशन जो है विद इन फ्यू मीटर्स और किलोमीटर्स में मिलता है। प्लेटोज ये भी एलिवेटेड होते हैं विद रिलेटिवली फ्लैट और जेंटली स्लोपिंग टेरेन। So these are some of the differences among these landforms. Talking about the valleys, ये lower elevation होती है, but these are in between the mountains. तो इनके जो adjacent landform है, which is a mountain, ये higher elevation पे होते हैं, और usually ये U shape या V shape जो है cross section इनका हमें देखने को मिलता है। So moving forward towards the next the difference, जिसकी बेसिस पे हम landforms को differentiate करेंगे, that is soil and vegetation. So soil और vegetation की बेसिस पे किस तरह landforms एक दूसरे से different है, let's have a look. So plains have mainly fertile soils. ये क्यों fertile होती है? क्योंकि और इनकी जो है fertile soil होती है, and they are suitable for agriculture, और vegetation के लिए ये suitable होते हैं। Deserts जो है इनका dry climate होता है, पानी यहाँ बहुत कम होता है, इसकी वजह से यहाँ वेजिटेशन सपोर्ट नहीं होती, बहुत ही कम होती है। माउंटेन्स जो है इनके अंदर वेरिएबल सॉइल होती है, कहीं आपको बिल्कुल वेजिटेशन नजर नहीं आएगी, जस्ट लाइक दिस, यहाँ स्नो है, यू कैन सी रेयर वेजिटेशन, बट एज कंपैरेटिवली टू हायर एलिवेशन, यहाँ नीचे जो है जरा आपको डेंस वेजिटेशन मिल रही है। तो इधर फर्टाइल सॉइल और डिफरेंट टाइप्स जो सॉइल्स का ये मिक्सचर होता है, ब्लेंड होती है, क्योंकि एलिवेशन चेंज बहुत ज्यादा है। प्लेटोज जो है यहाँ भी वेरिएबल सॉइल होती है, कुछ लेस फर्टाइल होती है, और कुछ जगह वेजिटेशन सपोर्ट भी होती है। सो वैलीज ये जो है इनमें भी वेरिएबल सॉइल होती है, और क्योंकि यहाँ पर सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, रिवर का यहाँ से गुजर होता है, इस वजह से यहाँ जो है वो वेजिटेशन आपको अक्सर जगह पे देखने को मिलेगी, और फेवरेबल कंडीशंस होते हैं एग्रीकल्चर के लिए भी। लेकिन स्टिल क्योंकि ये एलिवेशन इनकी जो इनके साथ एडजेसेंट माउंटेन्स होती है, उनके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि दे विल सपोर्ट द वेजिटेशन और नॉट। सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट एस्पेक्ट जिस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे ऑल द लैंड फॉर्म्स, दैट इज द वाटर बॉडीज। किस तरीके से वाटर बॉडीज की बेसिस पे ये लैंड फॉर्म्स जो है एक दूसरे से डिफरेंस है। सो लेट्स हैव अ लुक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, talking about the plains, they are often intersected by the river streams and lakes, जिसके बारे में हमने previous lecture में भी पढ़ा था। और deserts जो हैं ये dry होते हैं, और यहाँ पर पानी जो है इनका गुजर बहुत ही कम होता है, annual rainfall भी यहाँ बहुत कम होती है। और mountains जो हैं यहाँ rivers originate होते हैं, यहाँ से बहते हैं, यहाँ से निकलते हैं। और plateaus जो हैं invariable may have rivers or lakes but fewer compared to plains. प्लेन्स के मुकाबले में यहाँ रिवर्स कम होते हैं, बट स्टिल कुछ इलाकों में या कुछ प्लेटोज में रिवर्स देखने को मिलते हैं। वैलीज दे आर ट्रांसवर्स बाय रिवर्स, क्योंकि ये उन्हीं की इरोजन से बनती हैं, तो यहाँ पे पानी का गुजर या रिवर्स का गुजर जो है वो स्ट्रीम्स का गुजर होता है, और इसी वजह से यहाँ पे सॉइल जो है वो फर्टाइल होती है, प्लेन्स में भी और वैलीज में भी। So moving on towards the next aspect, that is the human habitation. किस तरीके से ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स में होती है, उसकी बेसिस पे भी हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लेन्स जो हैं यहाँ पे दीज आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड लैंड फॉर्म। सो हम इसको मैप से भी कंपेयर करेंगे। डेजर्ट्स जो हैं क्योंकि यहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, चैलेंजिंग होता है, सो देयर आर वेरी फ्यूअर पीपल। माउंटेन्स जो है अगेन इस पे क्योंकि इसके जो टेरेन है दैट इज रगेड और डिफिकल्ट होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स भी होते हैं, तो वहां लोग जो है कम स्टे करते हैं, बट इन वैलीज देयर इज ह्यूमन सेटलमेंट। टॉकिंग अबाउट प्लेटोज, वेरिएबल पॉपुलेशन होती है,
जहां एग्रीकल्चर ज़्यादा सपोर्ट होता है वहां पे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होती है. एंड अगेन वैलीज जो है दे सपोर्ट द पॉपुलेशन डेंसिटी. सो here you will look at the map of Pakistan and this is the physical map of Pakistan. So talking about the northern areas and the western mountain ranges, आपको यहाँ बहुत ही कम population density नजर आएगी as compared to plains. यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो काफी ज्यादा है. सो वी कैन से दैट प्लेन्स जो है दे सपोर्ट ह्यूमन सेटलमेंट. सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक, ये एक और एस्पेक्ट है कि किस तरीके से ये डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनते हैं. इनकी बेसिस पे भी हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव अ लुक एट द प्लेन्स. प्लेन्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं? ये दो तरीके से बनते हैं. या तो सेडिमेंट डेपोजिशन की वजह से बनते हैं, पानी आता है और वो सेडिमेंट्स छोड़ जाता है और उस तरीके से प्लेन्स फॉर्म होते हैं. एक और तरीके से भी ये बनते हैं विच इज टेक्टोनिक एक्टिविटी, यानी कि अगर टेक्टोनिक एक्टिविटी कहीं देखने को मिलेगी तो जिस तरीके से माउंटेन्स फॉर्म होती हैं, आपने प्रीवियस ग्रेड्स में बनाया, इसी तरीके से कुछ प्लेन्स जो हैं वो भी टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनते हैं. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. सो डेजर्ट्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं? डेजर्ट्स जो हैं ये किसी भी इलाके में हो सकते हैं, ठंडे भी हो सकते हैं, गर्म भी हो सकते हैं, माउंटेन्स पे भी हो सकते हैं, प्लेन्स में भी आपको देखने को मिल सकते हैं. सो डेजर्ट्स अकर इन डाइवर्स लोकेशन ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट कंडीशन रादर देन स्पेसिफिक लैंड फॉर्म. सो ये किसी भी जगह पर हो सकते हैं, सिर्फ क्लाइमेट की वजह से जो है ये फॉर्म होते हैं. सो टॉकिंग अबाउट माउंटेन्स एंड प्लेटोज, बोथ आर फॉर्म बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी. सो इसकी वजह से माउंटेन्स और प्लेटोज जो है वो फॉर्म होते हैं. Here you can see and we have also discussed it in grade 6 कि किस तरीके से टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से माउंटेन्स और प्लेटोज जो हैं दे फॉर्म. सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द वैलीज. वैलीज जो है ये इरोजन की वजह से बनती हैं. हायर जो सराउंडिंग एरिया होता है विच आर द माउंटेन्स, ये पानी से इरोड होती हैं जिसकी वजह से आपको ये कर्व्स जो है ये देखने को मिलते हैं. और ग्लेशियर्स भी हैं जो फ्लो डाउन करते हैं, तो ये अपने साथ काफी सारा लैंड इरोड कर देते हैं जिसकी वजह से ये डीप क्रॉस सेक्शन बनता है जिसको वैली कहा जाता है. और यहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है. सो दीज आर सम डिफरेंसेस दैट और डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमने इनको डिफरेंशिएट किया डिफरेंट लैंड फॉर्म्स को. सो for practice, my dear students, you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher. इसमें मुख्तलिफ questions है, read them out very carefully and differentiate different landforms. So pause the video and complete the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. Now let's quickly move forward towards your homework. So quickly note down your homework. For your homework, you will do activity 2 given on page number 7 and you will also complete question number 1 from exercise C. So this was your homework and now let's quickly wrap up today's lesson. So my dear students, today's wrap up is plains can be distinguished from other landforms by variations in elevation, presence of water bodies, soil composition, types of vegetation, processes of formation and level of human settlement. इसके अलावा इसको पढ़ने की क्या इंपॉर्टेंस है? यू मस्ट नो कि हम डिफरेंट लैंड फॉर्म्स में डिफरेंशिएशन को क्यों पढ़ते हैं, ताकि आप प्लानिंग अच्छी कर सके लैंड यूज की, आपको ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग हो and you could also comprehend ecosystems and human activities. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. बहुत ही important lecture था. If you have missed anything, you can again watch the lecture. I hope you have enjoyed it. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.